Good morning. Welcome back to the second part of Palaemnius, the Indian scorpion. In this video lecture, we will study about body wall, body cavity, digestive system and circulatory system of scorpion. I am Dr. Sunita Shekhawat and we will study the Indian scorpion Palaemnius. So first we start with the body wall of scorpion. The body wall of scorpion is made up of three layers: cuticle, second layer is hypodermis, and basement membrane. So first we talk about cuticle. Cuticle is the outermost layer. This layer is cuticle. You can see in this diagram. It is non-living. It is thick protective layer made up of chitin, and it covers the entire body, forming a exoskeleton. This layer cuticle is secreted by hypodermis, which is present just beneath it. Here you can see this is the layer of hypodermis and this is cuticle. Cuticle is traversed by numerous canals. You can see these are the canals which are present, and these canals open to the outside. Now, cuticle is composed of three layers. The outermost is called tetostracum, the middle one epiostracum, and the inner one hypostracum. The second layer is hypodermis. It is a single layer made up of cubical epithelial cells present just below the cuticle. It may have hair-like projections also. And the innermost layer is the basement membrane. So you can see a thin layer which is having no structure is present below the hypodermis layer. So there are projections of integument which are basically of two types. One is dermatidia. These are solid processes of chitin alone, such as denticles, and another is coelodermatidia. These are hollow processes, खोखले होते हैं, जैसे कि स्पाइन्स हैं, टार्सल क्लॉज हैं, स्पर्स हैं. तो अगर सॉलिड प्रोसेस है तो हम उसको कहते हैं डर्मेटिडिया, और अगर हॉलो प्रोसेसेस हैं इंटेग्यूमेंट में तो उसको कहते हैं सीलोडर्मेटिडिया. Talking about the body cavity, it is an extensive hemocoel filled with blood and surrounding different organs like heart. It is alimentary canal, gonads, hepatopancreas. Now this coelom is much reduced to the vestiges associated with reproductive system. The musculature of the scorpion involves one pair of muscles which are present in the cephalothorax region, and along with it there are 8 pair of dorsal ventral muscles which are present in the pre-abdominal region. Now these dorsoventral muscles run dorsal to ventral surface of the body on either lateral side of the body wall. Scorpion also has an internal skeleton which consists of cartilaginous plates which are known as endosteroid. So बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है. Now this endoskeleton lies somewhat obliquely between prosoma and mesosoma. This, you remember prosoma and mesosoma? And this endosteroid is roughly triangular structure shaped, and it is produced into several paired processes
इसके अंदर होते हैं, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल, जो कि मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. Now the body of endosteroid becomes fused with chitinous plate also, and this plate is known as diaphragm. This diaphragm is pierced by a nerve cord, an alimentary canal, muscle and a dorsal aorta. So this is the endoskeleton found in scorpion. Next we come to the digestive system on scorpion. So as you all know, an alimentary canal is present which starts from mouth to anus, and the alimentary canal in scorpion is straight and is divided into 4 parts: preoral cavity, foregut, midgut and hindgut. So first we will talk about the preoral cavity. Preoral cavity present in front of mouth. Obviously preoral मतलब माउथ के आगे. सो माउथ के आगे जो कैविटी पाई जाती है उसे हम प्री ओरल कैविटी कहते हैं. एंड दिस प्री ओरल कैविटी इज सराउंडेड बाय कॉक्से ऑफ फर्स्ट 4 पेयर्स ऑफ प्रोसोमेटिक अपेंडेजेस. देन वी हैव फोरगट, जिसको हम स्टोमोडियम भी कहते हैं. नाउ दिस फोरगट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोजोमा रीजन, और इसके अंदर आता है माउथ. हेयर यू कैन सी ये प्रोजोमा रीजन है, ये माउथ पोर्शन है जहाँ से शुरू होता है. फिर आता है फैरिंग्स, यू कैन सी माउथ मूविंग टू फैरिंग्स. देन वी हैव ईसोफेगस. सो these 3 parts constitutes the foregut. Mouth is a small, narrow, transverse aperture situated behind the preoral cavity. Now this mouth जो कि इतना नैरो है, सकड़ा है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जूसेस और पल्प्स ही अंदर जा सकते हैं, सॉलिड मटेरियल नहीं जा सकता है. फैरिंग्स जो माउथ के पीछे पाया गया है, ये लार्ज होता है, पियर शेप होता है, सेक्टोरियल चेम्बर है, इसकी वॉल्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है और ये डायलेट हो सकती हैं क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है. जो मसल्स इसमें पाई जाती हैं फैरिंग्स के अंदर, वो बेसिकली सकिंग ऑर्गन की तरह हेल्प करती हैं ताकि जो लिक्विड फूड है वो माउथ के थ्रू सक किया जा सके. फैरिंग्स के पीछे एक छोटी सी ट्यूब है जिसको कि ईसोफेगस कहा जाता है, और ये सेफेलिक नर्व रिंग के थ्रू जाती है, एंड देन इट pierces the endosteroid. Now this esophagus is continuous with the stomach region. ये आगे जाके स्टमक से कनेक्ट होती है, एंड इट फॉर्म्स ए स्लीव वेल्व. इसमें एक स्लीव वेल्व बनता है यहाँ पे, जिसके कारण जो खाना है वो वापस ऊपर की तरफ नहीं आता है, नीचे की तरफ जाता है. The third part is a midgut. midgut में 2 parts आते हैं. One is stomach and the another is the intestine. So the midgut includes the stomach and intestine, and it also has 2 digestive glands. Now this midgut is internally lined by epithelium. So first is stomach, which is short, dilated and extending up to diaphragm. तो diaphragm तक ये होता है, और ये स्टमक कंटिन्यू करता है इंटेस्टाइन के अंदर, एंड इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि लास्ट सेगमेंट तक जाता है. यहाँ लास्ट सेगमेंट तक जाता है और फिर ये हाइंड गट में जुड़ जाता है. नाउ दिस इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वॉल्स ग्लैंडुलर होती हैं, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन. दिस यू कैन सी, दिस इज प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, एंड अनदर इज पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन. प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन जिसको कि पार्स
टेक्टा इंटेस्टाइनी भी कहते हैं, और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन जिसको कि पार्स न्यूडा इंटेस्टाइनी भी कहा जाता है। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, दैट जंक्शन मीन्स यू सी इन दिस डायग्राम, ये जंक्शन जहाँ पे प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन पार्स पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन से मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन है, यहाँ पे एक या दो जोड़ी मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सो यू कैन सी दीज elongated, blind, narrow structures are the Malpighian tubules जिनका फंक्शन होता है excretory. Now this alimentary canal moves further into the hindgut region. ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये सिर्फ आखिरी मेटासोमिक सेगमेंट में पाया जाता है. This is internally lined by a chitin and it opens outside by a small aperture which is known as anus या anal aperture. Now this anus is situated ventrally at the base of the stinging aperture. So this is the structure of the alimentary canal found in scorpion. As already told you, scorpion has two digestive glands. One is salivary gland. I can show you the diagram here. This is the pair of salivary gland, जिसको कि stomach gland भी कहा जाता है. तो ये एक पेयर salivary gland का है जो कि ट्राइलोब्ड है, ब्राउनिश ग्लैंड है, प्रोजोमल रीजन में पाया जाता है और ये सीधा स्टमक के अंदर खुलता है. सो दिस इज नोन एज द सलाइवरी ग्लैंड. चूंकि ये स्टमक में खुलता है इसलिए कुछ साइंटिस्ट लोग इसको स्टमक ग्लैंड भी कहते हैं. एंड द अनदर इज हेपाटोपैनक्रियास. हेपाटोपैनक्रियास इज अ लार्ज brownish lobulated glandular mass. So you can see in this diagram this dark colored picture. This is the whole hepatopancreas जो कि काफ़ी बड़ा होता है और इसको कभी कभी लिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये फंक्शनिंग इसकी वैसी ही होती है. There are 5 pairs of lateral narrow hepatic ducts. आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 pairs of hepatic ducts which are lateral in position. Now this hepatopancreas is a racemose gland as it consists of a mass of small tubules which are in communication with the hepatic ducts. So हिपैटिक फंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमें, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूट्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. हाउएवर द एनिमल इज टेकिंग, द स्कॉर्पियन इज टेकिंग लिक्विड डाइट ओनली. सो नाउ वी कम टू द फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म. ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. कार्निवोरस होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लिक्विड फॉर्म में खाते हैं और दे कैन रिमेन अलाइव विदाउट फूड फॉर 6 months. मतलब इन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है. इनके अंदर कैनाबेलिज्म भी दिखाई देता है क्योंकि छोटे स्कॉर्पियंस मतलब अपने ही स्पीशीज़ के एनिमल्स को ये खुद खा जाते हैं. माउथ चूँकि बहुत छोटा होता है इसलिए ये सॉलिड पार्टिकल्स नहीं खा पाता है, ये सिर्फ लिक्विड इनटेक लेता है. सो तो ये अपने एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, ये इसने अपने पेडिपेल्प से इस स्पाइडर को पकड़ लिया. मतलब लाइक दिस इट सीजेस इट्स प्रे. अपने चिलेट पेडिपेल्प से ये सीज कर लेता है और जो स्टिंग होता है वो खाने को पैरालाइज कर देता है. उसके बाद ये पकड़ के ये प्री ओरल कैविटी में खाने को ले जाता है, अपने फीड को ले जाता है. And there it is torn to pieces by chelicerae. इसके अलावा ये उसको पकड़े रखता है
feeding process is very slow. For example, if it wants to have a cockroach, then it will take around 2 hours. So inside the preoral cavity, food is reduced to a pulp, और यहीं पे जो प्रोटीन्स हैं उनका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है बाय द सिक्रीशंस ऑफ एल्वियोलर ग्लैंड्स, जो कि मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ लेग्स में पाया जाता है। स्टमक के अंदर यह पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को मिक्स किया जाता है स्टमक ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशंस से, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। और अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है एंड द अनडाइजेस्टेड फूड रीचेज द हाइंड गट रीजन फ्रॉम वेयर दिस waste is excreted out through anus. Next we come to the circulatory system of scorpion. स्कॉर्पियन के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि एक टिपिकल आर्थ्रोपोडियन कैरेक्टरिस्टिक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कि हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर देयर इज अ हार्ट, अ पेरिकार्डियम, आर्टरीज, साइनसेस एंड वेन्स. So all these constitute the circulatory system. First we talk about heart. This is the heart of scorpion. You can see in this diagram. Heart is an elongated muscular tube जो कि फेंट ग्रीन कलर की होती है। ये प्री एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है। हार्ट को इनडिस्टिंक्टली 7 चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। यू कैन सी दीज आर द कंस्ट्रिक्शंस जो कि हार्ट को 7 चेम्बर्स में डिवाइड करते हैं। नाउ दीज 7 chambers have 7 pairs of dorsolateral valvular apertures और ostia. तो इनके अंदर 7 ऑस्टिया पाए जाते हैं जो कि हर चेम्बर में एक जोड़ी होता है। Now this heart is enclosed by a pericardium. So you can see the covering of heart is by a membranous sheath and this membranous sheath is known as pericardium. ये हार्ट को अटैच होती है बाय लिगामेंट्स एंड दिस डिवाइड्स द पेरिकार्डियल कैविटी इनटू अ 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल एंड 2 लेटरल कंपार्टमेंट्स। इसके अलावा इसमें आर्टरीज पाई जाती है। जो आर्टरी आगे की तरफ जा रही होती है उसको एंटीरियर एओर्टा कहते हैं और जो पीछे की तरफ जा रही है उसको पोस्टीरियर एओर्टा कहते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक द वन गोइंग इन फ्रंट, ये आगे की तरफ जो जा रही है, हार्ट से आगे की तरफ जो निकल रही है इन दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर एओर्टा। और हार्ट से जो पीछे की तरफ जा रही है, दिस वन जो पीछे जा रही है, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर एओर्टा। देयर आर अ सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरीज। आप देखिए ये सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं, बहुत सारी सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं जो कि पेयर्ड होती हैं और ये एज ए ब्रांच दी जाती है हार्ट से। तो ये अलग अलग जगह पे जाती है बॉडी ऑर्गन्स में। सो दीज आर देयर। सो नाउ दिस इज एंटीरियर एओर्टा, ये मैंने आपको बताया हार्ट से जो आगे निकल रही है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें इसके बारे में तो ये इंटीरियरली रन करती है पहली बात, और ये देती है 1 पेयर ऑफ विसरल आर्टरीज जो कि आगे की तरफ जा रही है। सी दिस इज अ विसरल आर्टरी। तो ये एंटीरियर एओर्टा से एक जोड़ी विसरल आर्टरीज निकलती हैं जो कि इंटेस्टाइन और हेपाटोपैंक्रियास को जाती हैं। इसके अलावा ये 1 पेयर ऑफ वेंट्रोलेटरल आर्टरीज भी देता है
वेंट्रोलेटरल आर्टरीज इसोफेगस की दोनों तरफ से होती हुई यूनाइट करती है ताकि वो एक सिंगल सुप्रान्यूरल आर्टरी बना सके. सो देयर इज अ सुप्रान्यूरल आर्टरी. तो ये सुप्रान्यूरल आर्टरी कैसे बनी है? ये दो वेंट्रोलेटरल आर्टरीज थी जो कि इसोफेगस के दोनों तरफ घूमी और वो फिर वो यूनाइट हुई और यूनाइट होके इन्होंने बनाया सुप्रान्यूरल आर्टरी. Now this supranuclear artery runs behind and above the ventral nerve cord. ठीक है. इसके बाद आती है पोस्टीरियर एओर्टा की बात करते हैं हम. अभी हमने पढ़ा कि ये पोस्टीरियर एओर्टा है जो कि हार्ट के पोस्टीरियर साइड से निकलती है. ये ब्लड सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को, मसल्स को, टेल्सन को और अल्टीमेटली जाके ये एंड अप होती है इसके अंदर पॉइजन ग्लैंड के अंदर, कि पॉइजन ग्लैंड में जाके ये एंड अप होती है. तीसरी आर्टरीज होती हैं सिस्टेमिक आर्टरीज. सिस्टेमिक आर्टरीज, दिस आर द सिस्टेमिक आर्टरीज. और ये सिस्टेमिक आर्टरीज मैंने आपको बताया ये हार्ट के हर चेम्बर से दी जाती है, लेटरल साइड में होती है और इनका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जो कि प्री एब्डोमिनल रीजन के सभी पार्ट्स को सप्लाई करता. इसके अलावा दिस हैज साइनसेस. तो जो आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं वो कुछ ब्लड स्पेसेस जिनको कि हम लेकुना कहते हैं उसमें ओपन होती हैं. एंड दिस स्कॉर्पियन हैज 5 लेकुनास. वन इज प्रीकार्डियल लेकुना या प्रीकार्डियल साइनस जो कि हार्ट के चारों तरफ होता है. दूसरा डोर्सल साइनस जो कि पेरिकार्डियल साइनस के ऊपर पाया जाता है. वन पेयर ऑफ लेटरल साइनस जो कि बॉडी के दोनों साइड पाए जाते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज वेंट्रल साइनस विच इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. एंड देयर इज अ वन pulmonary vein also. Now this pulmonary vein carries oxygenated blood. So ये जो pulmonary vein है ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? बुक लंग से ओरिजिनेट करेगी जहाँ पे देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और यहाँ से ये ऑक्सीजन को लेकर पेरिकार्डियल साइनस में जाता है और पेरिकार्डियल साइनस से जाकर ये पल्मोनरी वेन में जाता है. And scorpion has 4 pair of pulmonary veins. Scorpion में blood colorless होता है. Blood we also call as hemolymph. Colorless है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू टिंच पाया जाता है और ये ब्लू टिंच इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसाइनिन वो ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है. And it consists a copper containing protein. So ये हीमोग्लोबिन के जैसा होता है हीमोसाइनिन बिल्कुल, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन भी पाया जाता है और इसी के कारण से दिस इज हैविंग अ ब्लू कलर, अ स्लाइटिश ब्लूइश कलर. इसके अलावा ब्लड के अंदर बहुत सारे कॉर्पोसेल्स, न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल्स भी पाए जाते हैं जिनको कि हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. Now next we come to the circulatory system, the course of circulation. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट्स, जब लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट की कैविटी एनलार्ज होगी और इससे जो ब्लड है वो पेरिकार्डियल साइनस में फ्लो करेगा. ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में फ्लो करेगा थ्रू ऑस्टिया. वहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का तो क्या होगा, जो ओपनिंग्स हैं, ऑस्टियाज हैं, वो बंद हो जाएंगे और बंद होने के कारण से जो ब्लड है उसको आगे आर्टरीज में जाएगा और ये आर्टरीज फिर ब्लड लेक्यूना से कनेक्ट करती हैं अमंग द विसरा. सो
जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट का तो ऑस्टिया बंद हो गए और ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज से ये ब्लड लकूना में जाएगा। ब्लड लकूना से होता हुआ फिर ये आगे जाएगा डॉर्सल, लेटरल एंड वेरी विस्ट्रल साइनस, यहाँ पे जाएगा। यहाँ से the blood will be carried forward to the ventral sinus. Now, the impure blood of the body is collected by this ventral sinus and this sends to diverticula which is present on each book lung. Now, अब ये book lungs में आ गया। book lungs में क्या होगा? change of gases, exchange of gases होगी और फिर oxygenated blood पल्मोनरी वेन से होता हुआ आगे जाएगा हार्ट की तरफ थ्रू ऑस्टिया। तो पेरिकार्डियम में गया एंड वी कैन हैव राइटिंग ऑल्सो हियर। लेट मी राइट फॉर यू। सो पेरिकार्डियम से ये कहाँ गया? पेरिकार्डियम से ये गया ऑस्टिया के अंदर। तो ये गया ऑस्टिया में। Oh, the writing is not good, but I want to make you understand. पेरिकार्डियम से ऑस्टिया में गया और ऑस्टिया से अगेन इट गोज टू द हार्ट। तो पेरिकार्डियम से ऑस्टिया से होता हुआ, क्योंकि ऑस्टियाज आर द अपर्चर्स, सो ये वापस यहाँ से ये हार्ट में गया। This is heart. And again the same process from heart it will go to the where arteries. ये arteries में जाएगा। So we have arteries. और arteries से वापस से ये कहाँ जाएगा? ये blood lacuna में जाएगा। So this is how the blood circulation takes place. I hope that all this is very clear to you. Both the systems, the digestive system and the circulatory system. Please go through the video and understand it. Any queries, talk to me. I have cited the references also for you people. You can have a look. Thank you.